সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কিভাবে রেস্কিউ করা যাবে এবং তাদের সাহায্য করা যাবে, এনডিআরএফ, আপদা মিত্র, সিভিল ডিফেন্স সহ অন্যান্য বিভিন্ন সহায়কদের প্রশিক্ষণ দিল এনডিআরএফ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে বালুরঘাটের শুক্রবার আত্রাই নদীর সদরঘাটে একটি মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। শতাধিক কর্মী এই মক ড্রিলে অংশগ্রহণ করে। বন্যার সময় কেউ আটকে থাকলে তাকে কি করে উদ্ধার করা যাবে, ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার করে কিভাবে দুঃখিত জায়গা দিয়ে নিয়ে যাবে এবং সহ বিভিন্নভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলি বেরিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তাই সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মানুষদের সুরক্ষা একটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তাই প্রতি বছর এই জেলাগুলিতে মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে এই সমস্ত জেলাগুলির নদীগুলির নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে বললেই চলে, তাই এই জেলাগুলিতে বন্যার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এই সমস্ত জেলাগুলির মানুষদের বন্যার মতো বড় দুর্ঘটনার সুরক্ষা প্রদান করতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। এনডিআরএফ এর ডেপুটি কমান্ডার সঞ্জয় কুমার রঞ্জন বলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে এই মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। মূলত সীমান্তবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নদীগুলি বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এই নদীগুলি ইতিমধ্যেই নাব্যতা হারিয়েছে, তাই বন্যার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই বন্যার সময় এই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য আমাদের এনডিআরএফ, আপদা মিত্র, সিভিল ডিফেন্স সহ বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে আমরা এই মক ড্রিলের আয়োজন করেছিলাম। তিনি আরো বলেন, এই ধরনের মক ড্রিলের প্রতি বছর আমরা করে থাকি। হঠাৎ করে যদি বিপদকালীন ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ তার রেসপন্স করতে পারি। খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর অনুষ্ঠান। এখানে যেরকম হচ্ছে বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় এগুলো সব জানা গেল আমাদের। কিছু কিছু আমরা সেফটি থাকবো নিজেরাও, আচ্ছা, যাতে কেউ যদি জলে পড়ে আমরা অফিসে ফোন করলেও আমরা হেল্প পাবো। আচ্ছা, কিছু কি শিখতে পারলেন? কিছু তো হ্যাঁ, কিছু বুঝতেও পেরেছি, আচ্ছা, যে কিভাবে নিজেকে মানে বাঁচানো যায়। আচ্ছা, এইটুকু আপনাদের যে ট্রেনিং দেখলাম একটু আগেই, তো ওখানে সব দেওয়া আছে কিভাবে নিজেকে সেফ রাখতে হয়। আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো। কি শিখলেন? খুব সুন্দর। এই যেরকম ধরেন জলে ডুবিচ্ছি আর একজন আসে কিভাবে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এটা একটা যেরকম দেখাচ্ছে আমাদের বালুঘাটের টিম, খুব সুন্দর লাগছে। আপদা মিত্র খুব ভালো। কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি গ্রাম থেকে এসেছি, এটা দেখার জন্য এসেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কতটা উপকার হলো এটাতে? খুব ভালো, মানে এতে একটা কি নিজেকে বুঝতে পারলাম যে কিভাবে বাঁচা যায়। আচ্ছা, আর কিভাবে বাঁচাই সেটা আমরা দেখলাম। মানে আমাদের চোখের সামনে কেউ যদি ওরকম করে তাহলে আমরাও চেষ্টা করব যে সেইভাবে বাঁচানো যায় নাকি। কতটা মানে হচ্ছে যে প্রয়োজন এটা জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রয়োজন আছে। কখন কোন সময় কোন বিপদ হয়ে যাবে বলা মুশকিল। নামটা বলবেন? হ্যাঁ, উত্তম মহন্ত। सबसे पहले स्थानीय जिला प्रशासन दक्षिण दिनाजपुर को एनडीआरएफ की तरफ से और एनडीआरएफ की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद है कि डीएम साउथ दिनाजपुर के तत्वावधान में इस मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मैं संजय कुमार रंजन हूँ, डिप्टी कमांडेंट हूँ एनडीआरएफ कोलकाता से। फ़िलहाल मैं रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर आरआरसी सिलीगुड़ी में बेस्ड हूँ और सिलीगुड़ी की टीम ही यहाँ पर के मॉक एक्सरसाइज में रेस्पॉन्ड किया है, एक्ट किया है। दूसरी चीज़ जो सीन आपने देखा है, तो साउथ दिनाजपुर और नॉर्थ दिनाजपुर ये दोनों जो हैं वो सीमावर्ती ज़िले हैं, बांग्लादेश से सटे हुए हैं, और नदी यहाँ से निकल करके बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से निकल करके भी इंडिया में आती है। तो उस समय सिल्ट्स वगैरह हो जाने के कारण जब भी बरसात का मौसम होता है तो उस समय नदियाँ उफान पे आ जाती हैं, क्योंकि नदियों की गहराई थोड़ी कम हो गई है। तो उस समय में स्थिति ये बन जाती है कि मैक्सिमम गांव जो होते हैं, विलेज होते हैं, पॉपुलेशन होता है, वो प्रभावित हो जाता है, इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो उस समय में रेस्क्यू करने के लिए ही ये मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था कि जब सिचुएशन ऐसी डेवलप होगी तो एनडीआरएफ, लोकल एजेंसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फायर सर्विसेज, अपना डीडीएमए है, साथ में अपने एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, आपदा मित्र हैं, नेहरू युवा केंद्र हैं। तो ये जो कम्युनिटीज़ रिस्पॉन्स सिस्टम है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है। इसीलिए हमने इस मॉक ड्रिल में जितनी भी एजेंसीज थी सबको शामिल किया था और सबने बड़ी सफलतापूर्वक इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। और कुछ आप जानना चाहेंगे? सर, हाल ही में हमने देखा है कि पहाड़ पे बहुत बड़ा जो क्या बाढ़ आया है,
क्या इसी का प्रभाव है ये मॉक ड्रिल? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ों पे जब हलचल होती है, बर्फ़ पिघलते हैं तो पानी अल्टीमेटली नदियों में आता है। कभी कभी जो सिक्किम है, हमारा सीमावर्ती राज्य है यहाँ से, तो सिक्किम में भी जैसे आपको याद होगा 2023 में ग्लोफ का सिचुएशन हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जिसको हम एनडीआरएफ की भाषा में, डिजास्टर की भाषा में बोलते हैं। तो अगर कोई ग्लेशियर फट जाता है तो बहुत ही बल्क में वाटर रिलीज हो जाता है, जो नदी की कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, उसको इनक्रॉच नहीं कर पाती है रिवर। उस स्थिति में भी बाढ़ का सिचुएशन पैदा होता है। तो एनडीआरएफ की एक माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम भी है और सर्विलेंस एजेंसीज भी हैं, जो कि माउंटेन्स पे भी नज़र रखती है कि कहाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद से हम सचेत करके पब्लिक को इवैक्यूएट कर लेते हैं, ताकि जान और माल का नुकसान कम से कम हो। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। आज का जो मॉक ड्रिल है, ये जो इधर का जो इंडिया का जो रिपोर्ट जो मुकाबला दफ्तर है, रेस्क्यू करने के दिखाने के लिए ना साधारण लोग को दिखाने के लिए, ये सबकी भागीदारी है। यह मॉक ड्रिल जो होता है वो जनता को दिखाने के लिए भी होता है, और कंपोजिट हम इसलिए करते हैं कि जितनी भी एजेंसी ज़िले में होती हैं वो सारी एजेंसीज मिल करके डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कैसे करेंगे डिज़ास्टर के टाइम पे। इसीलिए पब्लिक भी साथ में थी, सिविल डिफेंस के लोग भी थे, लोकल एजेंसी भी थी, पुलिस भी थी। तो एक ज़िला में जितनी भी तरह की रेस्क्यू एजेंसियाँ हो सकती हैं, साथ में लोकल पॉपुलेशन भी है, तो वो सब मिल करके रेस्पॉन्ड का काम करते हैं, इसलिए सबको बुलाया गया था। तो ये जनता, प्रशासन और स्थानीय रेस्क्यू एजेंसी सबके लिए प्रोग्राम होता है। आगे भी इस तरह का मॉक ड्रिल होने वाला है? ये हर साल हम लोगों के लिए प्रोग्राम आता है। और ये जो मॉक एक्सरसाइज था, ये अपग्रेडेड मॉक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डीएम डिवीज़न है, डिजास्टर मैनेजमेंट